Please come, please come. Come in. Later you can take videos and photos. हिंदी में बोलना है, कोई भी इंग्लिश में बोलने को बोल रहा है, कोई भी हिंदी में बोलने को बोल रहा है। मैं कन्नड़ा में भी बोल सकता हूँ, तेलुगु में भी बोल सकता हूँ, तमिल में भी बोल सकता हूँ। बहुत खराब है मेरा इंग्लिश। अजय अजय प्लीज कम इन। कोई भी ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। सो हम लोग अभी खड़ा है मेन मंदिर में, द मेन टेम्पल एरिया। There are three domes from the outside. You can see three domes, right? East dome, the central dome, and the west dome. This is the east side, east dome. East dome we are dedicating for Lord Narsimhadev. Narsimhadev Bhagavan ki. So east side for Lord Narsimhadev. Then we are right now where we are standing. This is central division, central dome. This area we are dedicating for the main altar and the planetarium. So we are going to have a Vedic planetarium in this space. That's why we have made this massive dome, world largest dome. The dome, the dia is 73 meters. Without using any central support, the dome is constructed using the steel structure. The planetarium will be installed from the top where the rope is coming, the central point to the level of the altar. This planetarium will be installed. This planetarium represents from Bhurloka to Goloka. So all the planetary system will be there from Ananta Shesha to Goloka. Ananta Shesha is holding the universe, right? From that point to the Goloka, all the planetary system will be hanged here, the chandelier. It's called TOVP chandelier. This planetarium will rotate here in a clockwise direction. It keeps rotating. This is a 3D model chandelier. There will be a big rotator in the top to rotate the chandelier, the zoomer. Okay, this keeps rotating. When the visitors come, they will see the planetarium. They will excited, right? Oh, what is this? What's happening here? Right? You are also getting excited? Similar way, anyone comes to this temple, when they see this planetarium is rotating, they get excited. They wanted to explore the planetarium. When they wanted to explore the planetarium, there are different levels here. You can see level 5. Total 5 levels we have. We will take them into different levels. When the visitors go to different levels, they will experience different planetary system. When they go to the first floor, they can see the lower planetary system. When they go to the second floor, they can see the upper planetary system. When they go to the third floor, they can see the Mahesh Loka. When they go to the fourth floor, they can see Vaikuntha Lokas. Not only that, when they go to the fifth floor, they can see Goloka Vrindavana. Not only that, when they see all this planetarium and planets, they will get lot of questions, right? What is this Satyaloka? What is this Vaikuntha Loka? What is this hellish planet? And lot of questions they will get, right? Yes or no? Yes. When they'll get all these questions, immediately we will take them to the west side, west wing. There is a west dome, right? There are 3 domes. West side, west wing, we're going to have 5 floors. It's exhibits floor. We are going to explain all the creation in these 5 floors. Who is the creator? Where is the creator? Where I came from? Where I will go? And everything, the whole Bhagavatam will be explained in the 5 floors in the west wing. So that they'll get all the answers in the west wing, in the exhibits wing. Okay? Not only that, in the west dome, we are going to have a dome theater, planetarium theater. 350 seating capacity dome theater is going to come in the west wing. So when the visitors come, they can see the movies. Movies means what movies? Not that movies, materialistic movies. We are going to present Mahabharata, Ramayana and everything. There will be a movies, animated movies explaining all this Vedic, our Sanatana Dharma. So that's the idea of West Dome.
East dome for Narsingadev, central dome for the Vedic planetarium, and the west dome is for dome theatre and the Vedic exhibits. You got an idea? Is it clear? Very good, very good. I'll come back, okay? Now, 3 levels here you can see, first, second and 3 levels. In these 3 levels, we are going to present world largest museum. What is going to be in this museum, right? The question. We are going to explain Brihad Bhagavatamrita, the Gopakumara's explanation in these 3 levels. From the lower planetary to the up to the Goloka, the Gopakumara's explanations will be given here in these 3 floors, so that people will learn everything in this temple. When anyone comes inside this temple, before he exits from this temple, after visiting all this, he will shave his head if he is not a devotee, and he will go back. Some of them, they will stay back here. They don't need to go back after seeing all this. That's Srila Prabhupada's idea. Anyone comes to visit the temple of Vedic planetarium, they will become a devotee. So we are preaching for many years. We are convincing people for many years, right? That will happen within 24 hours time in the temple of Vedic planetarium. इतना है? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं ना? जगत गुरु Srila Prabhupada की. That's the idea of Srila Prabhupada. This temple is just not a temple. This temple will be a Vedic university. This temple will present old Sanatana Dharma to everyone. Anyone visits this temple, they will learn about the Sanatana Dharma. That's Prabhupada's idea. Amazing? We need this temple here. कितना जल्दी कर सकते हैं, इतना जल्दी हम लोग ये मंदिर करना पड़ता है ना? How much ever quick we will do this temple, that much quick the world will benefit from this temple. This is not an ordinary temple, devotees. This is a very important project for ISKCON. Now I'll come to the altar. This is the world largest altar. The first altar we are dedicating for Guru Parampara in the ISKCON history. First time we are making Guru Parampara altar. 15 Acharya Murtis, life-size deities will be installed in the first altar. From Srila Prabhupada to Shat Goswamis, there will be a principal Acharyas, Murtis will be installed in the first altar. Not only that, we are going to have a painting backside to the altar representing up to Lord Krishna. There's a Guru Parampara altar. In the middle, Panchatattva altar. We are dedicating for the Panchatattva in the last, right side, Radha Madhav Ashtasakis. This is the order of the altar. Many times devotees, they are expecting Radha Madhav should be in the center. Right? How many of you are also was thinking Radha Madhav should be in center? Right? So our parampara is Guru Parampara. We approach Radha Madhav through the Gaur Nitai, Panchatattva, right? So when the visitors come, they'll come to Srila Prabhupada, Vyasasan will be here, they'll offer obeisances, they go to Guru Parampara, they will go to Panchatattva, then they'll go to Radha Madhav Ashtasakis. In this way they'll honor darshan. Okay? Directly we don't go to Radha Madhav. Then second thing, Prabhupada, when he started this temple, he has named this temple as Sri Mayapur Chandrodaya Mandir in 1972. He has already given name. What is the name? Who is Mayapur Chandra? Gauranga Mahaprabhu, right? So Gauranga Mahaprabhu will be in the center of this temple. If you go to Vrindavan Krishna Balaram temple, right? Krishna Balaram is center. Similar way here, Gauranga Mahaprabhu will be in the center of worship. This is the order of the altar. If you see the temple hall, devotees, the temple hall together, Narsingadev and here, how many devotees I already mentioned? 10,000 devotees can honor darshan of Lordships here. 10,000 devotees. 10,000 devotees can attend Mangalarati, sing together, dance together in this temple hall. Imagine devotees, 10,000 devotees coming together, singing the holy names in this temple hall. How it will be? Vibrant, right? Super vibrant. This sound vibrations will change the world. This Sankirtan will not only in Gaura Purnima or in Janmashtami, Radhashtami day. This eternal Sankirtan will go on every day from morning to night. Every day 10,000 devotees.
singing. Nice? Vivo! जोर से बोलो हरे बोल. Now 10,000 devotees only in the temple hall means what about the whole temple? The whole temple is 40,000 devotees can come in, stay in this temple. The capacity of the temple is 40,000 devotees. Dear devotees, nowhere in the world any spiritual monuments or spiritual temples or churches or mosques can accommodate 40,000 devotees. Only in Srila Prabhupada's movement. Only in Srila Prabhupada's temple. 40,000 devotees in this temple. Amazing! So 40,000 devotees, when they come here, they just not roam here and there. They will be participating in different activities in this temple, devotees. Just they'll not come and roam and go. Everywhere there'll be activities. 10,000 devotees, they will participate in the kirtans. If they go to 3 levels, there'll be a world largest museum. They will participate in the museum. They will participate in the Vedic planetarium gallery view. They will participate 2 floors in Narsimadev. There is a museum in Narsimadev floor. 2 floors we are going to have Narsimadev Leelas. They're going to participate. If you go to West Wing, 5 floors we are explaining Bhagavatam. They will participate in Bhagavatam explanations. In this way, anyone comes inside, they will be participating in Krishna conscious activity. So in this way, they learn Krishna conscious philosophy. The whole world will flood with the devotees. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Now we are going to our Narsikadev temple. The Narsikadev temple is almost ready. We have inaugurated. जय 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 नरसिंहदेव. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For the pleasure of the devotees, we are going to open the curtains. Then we are going to do Arati also. We are going to do the Arati in Narsimadev temple. Not only that, we are going to offer lamps also. All the lamps are arranged here. So we are going to offer first lamp in TOVP. Lord Narsimadev. It's good, no? Hari Bol! So anyone wants to sing Narsingha Arati? Yes. So we're going to have Narsimha Arati. Everybody can participate. Everyone please participate in Narsimha Arati. There will be Arati. Then further we will explain.
नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखा अस्फुतशृङ्गार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे 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 जय केशव सीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज
प्रल्हाद महाराज, जय प्रल्हाद महाराज। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। सर्व भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की श्रील प्रभुपाद की। वैकुंठ है, वैकुंठ वैकुंठ जैसा बनाया है हम लोग, है ना। वैकुंठ है, हम लोग इतना भव्य मंदिर बनाए नरसिंह देव का, आप लोग देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी। ये एक ग्लिम्स है, जस्ट ग्लिम्स ऑफ द वैदिक प्लानिटेरियम, जस्ट अ ग्लिम्स। Once the main temple is ready, then it will be really, mesmerizing beauty. You cannot imagine, even you don't get an idea to go back itself. You'll always think, no, let me settle here itself. So I lost heart in temple of Vedic planetarium. Okay, so we have done a very beautiful temple. We are dedicated for Lord Narasimhadev. Our Narasimhadev deity is very special deity, right? In whole world, the devotees, any obstacle, any problem, immediately they remember my poor Narasimhadev. They offer praise to Narasimhadev, right? He is our divine protector. So for him, we are dedicating this temple. From this point, the Narasimhadev temple, उधर से बाद में उधर तक वो मेन मंदिर है, इधर है वो नरसिंहदेव मंदिर, वो पिलर से इधर तक है ईस्ट विंग। ये मंदिर ऐसा बनाया है, वैकुंठ मोर ऑपुलेंट से बनाया। यू कैन एक्सपीरियंस द वैकुंठ ऐश्वर्य हियर, मोर एन ऐश्वर्य भावा। इफ यू गो टू द मेन टेम्पल, द मूड इज एंटायरली डिफरेंट। The same design will not be applicable for the main temple. The design is entirely different. That design will represent the Madhurya theme. So this design representing the Aishwarya theme, right? Because Lord Narasimhadev in Vaikuntha, right? So that's why we have created a lot of valuable stones and gold and everything we have used to make this temple. If you see the main temple, the altar backside, the wall is Italian marble, which covered with Sudarshan Chakra. Backside of the deity, you can see the Sudarshan Chakra, right? So we're going to have a gold plating top of it, the Sudarshan Chakra. That's the idea, way to finish. And here the Prabhavali, where the flower decoration happened, here we're going to have a Prabhavali. This Prabhavali will be designed with valuable gems and stones. So that's ready actually. There'll be a Prabhavali here. Then the deity where Narasimhadev right now, the replica deity is kept, same place, the original deity where the present temple deity will be moved here and it will be installed here. Okay, अभी आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये replica deity है, ये deity dressing room में रहेंगे, राधा माधव पंचतत्व and नरसिंहदेव का हम dressing room में रखेंगे। कभी भी भगवान का कपड़ा तैयार होता है, पहले ये डेटीज का ऑफरिंग करेंगे, सही है, मतलब बाद में बेचेंगे ओरिजिनल डेटीज का। ये ट्रायल रूम डेटीज है, हम लोग भी ट्रायल रूम में जाते हैं ना, कपड़ा खरीद करने का टाइम पहनते हैं, राइट? सिमिलर वे हम लोग भगवान का भी ऐसे ट्रायल रूम में है, भगवान भी रहेंगे उधर, हम लोग भगवान को ऑफरिंग करेंगे, सही है, मतलब भगवान इधर आल्टर में आएंगे, कपड़ा सारे इसका है। ये ट्रायल रूम डेटी है, हम लोग आज दर्शन ले रहे हैं। अब बहुत सौभाग्यशाली आज आप दर्शन ले रहे हैं इधर ऑल्टर में नरसिंहदेव का, है ना। सर्व विघ्न विनाशक भक्तवत्सल श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की। आप लोग अभी ऑल्टर देख रहे हैं, पूरा है ब्लैक ग्रेनाइट एंड इटालियन मार्बल से बनाए हैं, ठीक है। इटालियन मार्बल एंड द ब्लैक ग्रेनाइट फ्रॉम इंडिया, द कडपा आंध्र ग्रेनाइट वी हैव यूज्ड टू डिजाइन दिस altar. If you see other stones, if you see the green marbles where in the Narasimhadev temple, green marbles you can see in the pillars, round pillars, square pillars, even in the below the altar there is a green marble. These marbles are imported from Brazil country, Brazil से आया है। ये मार्बल साधारण मार्बल नहीं है, ये एमराल्ड स्टोन है। एमराल्ड स्टोन जनरली है ज्वेल्स में इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग ज्वेलरीज। सो हम लोग इधर एमराल्ड स्टोन्स किधर इस्तेमाल कर रहे हैं? मंदिर बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, पिलर्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप लोग सोच लीजिए, इतना एक्सपेंसिव मार्बल से ग्रीन वाला, ग्रीन एमराल्ड्स फ्रॉम ब्राजील कंट्री। फिर आप राउंड पिलर देख रहे हैं, वो स्पेन कंट्री का मार्बल है, स्पेन कंट्री से आया रेड वाला। और वॉल में आप देख रहे हैं व्हाइट वाला मार्बल, इंटीरियर वॉल्स में आप व्हाइट मार्बल देख रहे हैं, पूरा चमक रहा है ना। ये मार्बल भी ब्राजील से आया है, व्हाइट मार्बल फ्रॉम ब्राजील। 16 डोर्स है ये ना, वैकुंठ का इधर आप देखेंगे नरसिंह देव मंदिर में 16 दरवाजा है। ये पूरा वुड बर्मा से आया है, बर्मा टेक वुड इस्तेमाल किया है, पूरा बर्मा वुड से बनाया डोर्स, ठीक है। फिर आप लोग फ्लोर में खड़ा है, फ्लोरिंग में है, आप देखेंगे ये कंट्री का मार्बल नहीं, ये पूरा फ्लोर, ये मार्बल पूरा दुनिया से बहुत देश से आया है। वियतनाम मार्बल, बुल्गारियन मार्बल्स, अमेरिकन मार्बल्स, स्पेन मार्बल्स, फ्रेंच मार्बल्स, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हम लोग इसमें इस्तेमाल किया है। ये अलग अलग कंट्री से आया है। इसका 1 स्क्वायर फुट का कम से कम 5,000 से 10,000 तक खर्चा किया है मार्बल्स का। आप लोग सोच लीजिए, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये मार्बल्स का ऊपर फिर आप देख रहे हैं, ये पूरा आप लोग देख रहे हैं येलो येलो कलर है ना, ये सारे पेंट नहीं है, ये पूरा 24 कैरेक्टर गोल्ड लीफिंग इस्तेमाल किया है। पूरा का पूरा सोना है, गोल्ड, एवरीथिंग इज 24 कैरेक्टर प्योर गोल्ड इस्तेमाल किया है। इतना मात्र नहीं है, आप लोग ऊपर देख लीजिए, डोम में इंटीरियर्स पूरा गोल्ड लीफिंग किया है। आप लोग सोच लीजिए, आप लोग फिर कितना खर्चा कर रहे हैं भगवान का मंदिर बनाने में, है ना। अच्छा ये प्रभुपाद जी का आइडिया है, ऐसा एक मंदिर बनाना मायापुर में, पूरा दुनिया इधर आना है। आएंगे नहीं आएंगे? आप लोग का कॉन्फिडेंस है मतलब आ जाएंगे। आप लोग का कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब दुनिया किधर से आएंगे, है ना। आप लोग ऊपर एक झूमर देख रहे हैं, ऊपर देखे ऊपर, ये झूमर है 100 फीट का, ये लेंथ है। द हाइट ऑफ द झूमर इज 100 फीट। आप लोग का ऐसा छोटा ऐसा देख रहे हैं ना, डोम इतना बड़ा है इसका, है वो झूमर छोटा देख रहे हैं। इसका हाइट है 100 फीट, 33 मीटर हाइट है। ये झूमर का वेट मैं बता रहा हूँ 4000 केजी है। 2 टन का एक झूमर लगा है ऊपर। इसका कॉस्ट आप सोचेंगे शॉक हो जाएंगे। एक मंदिर बना सकते हैं एक स्मॉल टाउन में, सोलापुर और कोल्हापुर में एक मंदिर भी बना सकते हैं। इसका कॉस्ट है 5 करोड़ है, पूरा गोल्ड प्लेटिंग की है। फिर प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना जी प्रभु जी? एक चैंडिलियर का एक झूमर का हम लोग 5 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है आप लोग सोच रहे हैं ना। बहुत है, बहुत है। ये झूमर मैं बताया प्लानिटेरियम मेन डोम में, उसको वेट है 80,000 केजेस है। उधर प्लानिटेरियम का एक झूमर हम लोग लगाएंगे, उसको वेट कितना है 80,000 केजेस, 80 टन है। आप लोग सोच लीजिए फिर कितना बड़ा झूमर आएंगे। आप लोग एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं, वो पूरा स्पेस प्लानिटेरियम है, ऐसा घूमते रहेंगे। माय गॉड, अस्टॉनिशिंग, यू नो, पीपल आ जाएंगे, वो क्या है, ऐसा हो जाएंगे, है ना। इतना अच्छे से बना रहे हैं, वो प्लानिटेरियम भी रेडी हो रहा है। ये दोनों माड़ी में नरसिंह देव का लीला हम लोग प्रेजेंट करेंगे, म्यूजियम फ्लोर है ये दोनों में, ठीक है। कोई भी आएंगे नरसिंह देव के ऊपर, वो लोग क्या कर सकते हैं, नरसिंह देव लीला सारे वो लोग पता चलेंगे उन लोग का, नरसिंह देव कौन है, कैसे आया, कब आया, सारे हम लोग एक ऐसे प्रेजेंटेशंस करेंगे। ये सारे प्रेजेंटेशंस मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस डायराम से माध्यम से रहेंगे। इतना दुनिया पूरा आएंगे, उन लोग कैसे ये समझेंगे, ऐसा आप लोग का सवाल है। गाइड रहेंगे? गाइड नहीं रहेंगे, पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी है। थोड़ा QR कोड रखेंगे, वो मोबाइल से ऐसा क्लिक करेंगे, लैंग्वेज चूज करेंगे, लैंग्वेज चूज करके एयर प्लग्स लगाएंगे, मतलब पूरा का पूरा वो समझ सकते हैं उनको लैंग्वेज से माध्यम से। ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग एग्जिबिट्स, म्यूजियम, यू नो, इधर भी हम म्यूजियम में इस्तेमाल करने का कोशिश चल रहा है। आप लोग नहीं सोच सकते इतना एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इतना बहुत सुंदर अभी इधर रेडी हो रहा है, मंदिर रेडी हो रहा है प्रभुपाद जी का।
अच्छा लगा? ये नरसिंहदेव मंदिर है, दुनिया में सबसे बड़ा नरसिंहदेव मंदिर है। 2000 से 3000 भक्त लोग मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं ये मंदिर में। रीवो किधर भी आप लोग सुना 2000 लोग नरसिंहदेव का मंगल आरती अटेंड करेंगे? ये मंदिर में कर सकते हैं। आप लोग आल्टर से पकड़ के लास्ट दरवाजा मेन मंदिर में देखे, उधर तक लोग खड़ा करके मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं नरसिंहदेव का। आज दिन आप देखेंगे और सुबह मंगल आरती में कितना दिक्कत हो रहे है ना। माय गॉड, आज इतना स्टैम्पेड हो गया। ऐसा पुष्कर है नरसिंहदेव का एक ग्लिम्स लेने का। ये वो प्रॉब्लम इधर नहीं आएगा, आएंगे। ये मंदिर वंस इनाग्रेशन हो जाएंगे, आज 50,000 लोग आ रहे हैं, उस दिन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भक्त लोग आएंगे। मंगल आरती में लाखों लोग रहेंगे। आप उस टाइम भी राधा माधव नरसिंहदेव का ग्लिम्स से ले सकते, आराम से खड़े करके दर्शन नहीं ले सकते। ये है मायापुर धाम, ये है नित्यानंद प्रभु का इच्छा है। ठीक है, नित्यानंद प्रभु का इच्छा है पूरा मायापुर भरना है भक्त लोग से। रीवो कभी आप लोग नहीं सोचना ये मंदिर से राधा माधव का हम लोग दर्शन आराम से ले सकते। That will never going to happen। इतना भक्त लोग आ जाएंगे, आज आपका आराम से इधर खड़ा है, फ्यूचर में नहीं खड़ा कर सकते। डोंट थिंक, दैट विल नेवर हैपन। आज आप लोग फॉर्चुनेटली इधर खड़ा है, आप थोड़ा बात भी सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। फिलॉसफी का बात करता हूँ। 150 साल का पहले भक्ति विनोद ठाकुर सोचा एक मंदिर बनाना है योगपीठ में। कौन सोचा? हाँ, वो मैजिस्ट्रेट था, उनको पास पैसा भी था, लक्ष्मी था, पावर था, सारे था। वो आचार्य सोच रहे एक मंदिर बनाना है योगपीठ में। उनको पैसा से मंदिर बना सकता था भक्ति विनोद ठाकुर। फिर भक्ति विनोद ठाकुर उनको लक्ष्मी का इस्तेमाल नहीं किया योगपीठ में। वो क्या किया? एक एक घर में पहुंच के एक एक भक्त से एक एक रुपए लेके आके मंदिर बनाया योगपीठ में भक्ति विनोद ठाकुर। वो है भक्ति विनोद ठाकुर का कंट्रीब्यूशन है चैतन्य महाप्रभु का मायापुर धाम में। दैट्स हिज पर्सनल ऑफरिंग टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इन श्रीधाम मायापुर। लेटर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एस्टैब्लिश किया, 64 गौड़ीय मठ का एस्टैब्लिश किया। उनको हेडक्वार्टर्स बनाया मायापुर में, वो है चैतन्य मठ। कौन बनाया? कौन बनाया? बहुत अच्छा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कंट्रीब्यूशन है मायापुर धाम में। उनको है पर्सनल ऑफरिंग है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य मठ। सिमिलरली हमारा आचार्य प्रभुपाद फाउंडर आचार्य भी सोच रहा था भक्ति विनोद ठाकुर कुछ बनाया मायापुर में, मेरा गुरु महाराज भी कुछ बनाया मायापुर में, मैं भी कुछ बनाना है मायापुर में। उनको इच्छा था किसका? आज तिरुभव तिथि है प्रभुपाद जी का, है ना? प्रभुपाद जी का बहुत ही एक इच्छा था मायापुर में कुछ बनाना है। क्यों है? गुरु महाराज भी, उनको गुरु महाराज भी बनाया, भक्ति विनोद ठाकुर भी बनाया, उनको भी ऐसा इच्छा था। फिर भी प्रभुपाद का पास लक्ष्मी नहीं था, he does not had money। प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचा, इस्कॉन का स्थापन किया, फिर वापस आ गया मायापुर में, आके कलकत्ता में आ गया। 2 शिष्य का भेजा इधर मायापुर में, जाओ आप मायापुर में एक छोटा जमीन खरीद करो। क्या खरीद करना? क्या खरीद करना? छोटा जमीन खरीद करो। क्या बोला? गेट मी पीस ऑफ लैंड। ये है प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, गेट मी पीस ऑफ लैंड। ये 2 शिष्य आ गया मायापुर में। क्या था मायापुर में उस टाइम? खेती था, सारे के सारे खेती, ओनली राइस फील्ड्स था। ये 2 शिष्य आ गया, रहने का जगह नहीं है, नहाने का जगह नहीं है, खाने का भी जगह नहीं है। आप लोग का एटलीस्ट कुछ मिल रहा है? मिल रहा है? अच्छा फीस्ट प्रसाद मिल रहा है, एटलीस्ट आपको थोड़ा शेल्टर भी मिला है ना। इतना अच्छा स्टे भी नहीं मिला, फिर भी मिला। उस टाइम कुछ भी नहीं था। यू शुड बी ग्रेटफुल और नॉट? 2 शिष्य आके जमीन खरीद किया, 10 बीघा 3 एकड़ जमीन खरीद करके प्रभुपाद जी का पहुंच गया। कलकत्ता में पहुंच के प्रभुपाद जी का ऑफरिंग दे दिया। प्रभुपाद आपका लैंड मिल गया मायापुर में, ले लो। प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गया। तुरंत प्रभुपाद जी चिट्ठी लिखा सब जीबीसी का, आ जाओ मायापुर में। क्या है मायापुर में? रहने का एक झोपड़ी भी नहीं है। प्रभुपाद जी चिट्ठी लिख रहे हैं, सब आ जाओ मायापुर में।
सब चार्टर फ्लाइट्स बना के वो पकड़ के आ गया, कलकत्ता में पहुंच गया, बहुत एक्सपेक्टेशन से आ गया मायापुर में। इधर क्या है? खेती है, बड़ा बड़ा सांप है, बड़ा बड़ा मस्कीटो है, सारे हैं। वो वेस्टर्नर्स सारे आ गए मायापुर में प्रभुपाद जी के साथ, आके एक झोपड़ी बनाया। क्या बनाया? अब लोग दर्शन किया झोपड़ी का, सब लोग दर्शन किया। वो झोपड़ी है इस्कॉन मायापुर। 1972 में इस्कॉन मायापुर मतलब क्या है? क्या है? एक झोपड़ी है। इस्कॉन मायापुर मतलब क्या है? जोर से बोलना। क्यों है वो झोपड़ी अभी तक रखा? प्रभुपाद जी बोला ये झोपड़ी रहने दो, दुनिया पूरा आएंगे, उन लोगों का पता चल रहा है हम लोग झोपड़ी में था। अभी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम में पहुंच रहे हैं हम लोग। प्रभुपाद जी खुद बोला ये झोपड़ी रहना है, पूरा दुनिया का पता चलना है हम लोग किधर था, अभी किधर तक पहुंचा है, पूरा दुनिया का पता चलना है। इसका ये वो झोपड़ी अभी तक रखा है। ठीक है, प्रभुपाद जी वो झोपड़ी में रुके, इस्कॉन मायापुर का शुरुआत किया, वो झोपड़ी में रुके इसका भूमि पूजा किया, वो झोपड़ी में रुके राधा माधव का वर्शिप किया, वो झोपड़ी में रुके इंटरनेशनल परिक्रमा का शुरुआत किया प्रभुपाद जी। सोच लीजिए एक झोपड़ी, आज मायापुर मतलब क्या है? इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, $200 मिलियन का प्रोजेक्ट है आज मायापुर। प्रभुपाद जी का विजन देख लीजिए, एक झोपड़ी आज $200 मिलियन का एक अद्भुत मंदिर निर्माण हो रहा है ना। इतना ग्रेट आचार्य, आज उनको तिरुपति है, हम लोग कैसा उनको इतना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं? कितना भी हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे वो सफिशिएंट नहीं होता है ना। प्रभुपाद जी पूरा दुनिया का इधर लेके आ रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना। ऐसा प्रभुपाद जी मायापुर चंद्र राधा माधव का उधर से शुरुआत किया। राधा माधव लोटस बिल्डिंग में आ गया, लोटस बिल्डिंग से प्रेजेंट आल्टर में आ गया, प्रेजेंट आल्टर में 40-50 साल से वेट कर रहे हैं मेरा मंदिर कब रेडी हो जाएंगे, मैं जाएंगे अंदर। कितना साल से वेट कर रहे हैं हम लोग? कोई भी ऐसा वेट करेंगे? 50 साल से राधा माधव अल्टर में वेट कर रहे हैं उनको मंदिर निर्माण का। वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। हम लोग घर बनाने का टाइम एक मेकशिफ्ट में वो एक टेम्पररी बना के हम लोग घर बनाते हैं ना, ऐसा उन लोग का मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स में रखा है। हम लोग उनको घर बना रहे 14 साल हो गया, अभी भी बना रहे हैं। सब डिवोटी पूछ रहे प्रभु कब है इनागुरेशन, कब है इनागुरेशन, पूछ रहे आप लोग भी। यह सवाल है बहुत डिवोटी का, है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये मंदिर इनागुरेशन 2026 में करने का। भगवान का इच्छा पता नहीं कितना दिन उधर रहना चाहता है, इनका विल क्या है पता नहीं, फिर भी हमको है क्या इच्छा है उनको जल्दी का जल्दी इधर लेके आए। प्रभुपाद जी का शिष्य सारे दुनिया से निकल रहा है ना, बहुत जल्दी का जल्दी डेटीज का इधर ट्रांसफर करना है। हम लोग का वो है इच्छा है। आपका मदद, बिना मदद हम लोग ये मंदिर का खत्म नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। बहुत काम है, आप लोग देख लीजिए सेंट्रल डोम, सेंट्रल विंग में अभी तक कुछ काम शुरुआत नहीं किया, बिकॉज ऑफ फंड्स शॉर्टेज हम लोग का। प्रभुपाद जी 1976 में अम्बरीश प्रभु का एक इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? मायापुर में ऐसा एक मंदिर बना दो। डेट्रॉइट में अम्बरीश प्रभु, फोर्ड कंपनी का ग्रेट ग्रैंडसन अम्बरीश प्रभु का एक इंस्ट्रक्शन दिया, प्रभुपाद जी इधर एक मंदिर बना दो। प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शंस का माध्यम से अम्बरीश प्रभु ये मंदिर का शुरुआत किया 2009। इनिशियल इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 650 करोड़ है, 50% अम्बरीश प्रभु दे दिया ये प्रोजेक्ट में। ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो अम्बरीश प्रभु का कंट्रीब्यूशन है। आज मंदिर आप बाहर से देख रहे हैं ना, ये एक डिवोटी बनाया है। कौन है? अम्बरीश। प्रभुपाद जी उनको बोल दिया मंदिर बना दिया। अभी अम्बरीश प्रभु क्या बोल रहे हैं? अब पूरा दुनिया में भक्त लोग मिला के ये मंदिर का कंप्लीट कीजिए। ये अम्बरीश प्रभु का इच्छा है। अम्बरीश प्रभु ये मंदिर कंप्लीट कर सकते हैं, उनको पास लक्ष्मी है, धन है, फिर भी अम्बरीश प्रभु क्यों कंप्लीट नहीं कर रहे बताए आप लोग का? सब भक्तों का साथ क्यों है? हर डिवोटी का इसमें ये मंदिर में मौका मिलना है। एवरीबडी शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी। भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसा सोचा है ना, कभी मंदिर बनाया योगपीठ में, उस टाइम भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसा सोचा है, सब लोग का मौका मिलना है। ऐसा भी अम्बरीश प्रभु सोच रहे हैं, सारे दुनिया में कितना भक्त लोग है उसको उनका मंदिर में भाग मिला है। ये अम्बरीश प्रभु का इच्छा है।
अम्बरीश प्रभु ये मंदिर बनाएंगे, ये मंदिर फोर्ड का मंदिर हो जाएंगे। अम्बरीश प्रभु का वो इच्छा नहीं है मंदिर फोर्ड बनाया, कोई भी ऐसा नहीं बोलना है, ये है अम्बरीश प्रभु की इच्छा है। अम्बरीश प्रभु बोल रहे ये मंदिर सारे डिवोटी से मिलके बनाए हैं, ऐसा अम्बरीश प्रभु सुनना चाहते हैं। He does not want to listen that the temple was built in by Ford company. उनको इच्छा नहीं है। इसका है आप लोग का और आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि है, आप लोग का सब लोग का आज मौका मिल रहा है। ये कार्तिक महीना में मायापुर धाम में ऐसा एक मौका मिल रहा है ये मंदिर निर्माण से में भाग लेने का। हम लोग का कभी कम से कम अभी 300 करोड़ तक चाहिए ये मंदिर का कंप्लीट करने का 2026 का अंदर मिनिमम 300 करोड़। आज प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1000 करोड़ है इसका कंप्लीट करने का। प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड है 1000 करोड़ मैक्सिमम चल रहा है आज का दिन में। अरे मिनिमम हम लोग का 300 करोड़ तक चाहिए कंप्लीट करने का। आप लोग का आज मौका है। हम लोग अलग अलग स्कीम है, मेडालियन स्कीम, ब्रिक स्कीम, स्क्वायर फुट स्कीम, ऐसा कॉइन स्कीम, सारे इतना स्कीम्स निकला है महाप्रभु कृपा से। ये सारे स्कीम आप लोग कोई भी एक स्कीम ऑप्ट करके 2 साल 3 साल का अंदर ये लक्ष्मी आप लोग पहुंच सकते हैं। एक मेडालियन स्कीम है, गोल्ड मेडल दो, ये गोल्ड मेडल प्रभुपाद जी का मेडल है। आज प्रभुपाद तिरुभाव तिथि है, कितना भक्त लोग इधर फॉर्चुनेट है वो मेडल रिसीव करेंगे पता नहीं है। ये गोल्ड मेडल स्कीम है 3.5 लाख 3.5 लाख कोई भी फ्लेज करेंगे। डाउन पेमेंट 0 डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट करने का जरूरत नहीं। आज प्रभु जी मेरे पास लक्ष्मी नहीं है फिर भी ठीक है, दिक्कत नहीं है। आप क्या करना है, एक संकल्प लेना है। क्या करना, संकल्प लेना। यस माय डियर डाइटीज, राधा माधव पंचतत्वा में आज आपका पैलेस देखा, आपका मंदिर बना रहे हैं, मेरे को एक इच्छा है ये मंदिर में भाग लेने का। ऐसा आप लोग सोच के मन में एक चीटी लिखना है, यस मैं आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस टेंपल। आप पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, ऐसा एक मौका मिल रहा है। कोई भी ऐसा मौका देता है? एक औदार्य धाम में मायापुर में चैतन्य महाप्रभु ऐसा एक मौका देता है, एडवांस 0 डाउन पेमेंट से आपका मौका दे रहा है। आप प्लेज लेना है, 3 साल का अंदर कभी भी भर सकते हैं इसका। 3.5 लाख रुपीस गोल्ड मेडल है। कितना टाइम तक आप भर सकते हैं? 3 साल में कभी भी भर सकते हैं 3.5 लाख। फिर भी आप भर नहीं पाएंगे, दिक्कत नहीं है। आप लोग डिवोटी सोचे इसमें भर नहीं पाएंगे, दिक्कत नहीं है। भगवान आपका पास क्रोध नहीं होता है। इन केस यू आर टेकिंग अ फ्लैश, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, नो हम लोग ऐसा एक संकल्प ले लिया कंट्रीब्यूट करना और भगवान नाराज हो जाता है। भगवान नाराज होता है? यू विल गेट एंग्री? यू विल डोंट गेट एंग्री, यू विल बी प्लीज्ड। भगवान पसंद हो जाता है आपका जीवन में, है ना। Lord will be pleased because you desire that, you know, you want to take some sankalpa and you want to contribute, है ना। yes or no? yes. ठीक है, आप लोग का अभी भी आप लोग सोच रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग इधर से निकलने के पहले मन में एक भाव आना है। ठीक है, आप लोग संकल्प नहीं कर रहे, एटलीस्ट मन में क्या आना पता है? आपका एक इच्छा आना है। क्या इच्छा पता है? मैं सेवा करना है मंदिर में। इच्छा आना है नहीं आना? फिर भी आप नहीं कर पा रहे, दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट यू शुड हैव अ डिजायर दैट यू वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस टेंपल। आप डिजायर इच्छा करेंगे, भगवान आपका पहुंचेंगे। प्रभुपाद जी का पास पैसा था अमेरिका जाने का टाइम नहीं था, उनको पास कितना था पैसा? 40 रुपए में जाके अमेरिका में ये मंदिर का स्थापन किया, है ना। आज प्रभुपाद जी का ऑपुलेंस पता है ना, इसको कितना बड़ा है, किधर से आया? प्रभुपाद जी से इच्छा से आया। प्रभुपाद जी का इच्छा था, मेरा गुरु महाराज बोला मैं करना है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे इच्छा कीजिए। हमारा पास गोल्ड मेडल है 3.5 लाख, सिल्वर मेडल है 2 लाख। ये सिल्वर मेडालियन कोई भी प्लेज लेंगे, आज उनको मेडल देंगे नरसिंह देव का सामने, इधर बुला के उन लोग का मेडल देंगे। आप 0 डाउन पेमेंट से मेडल लेके जा सकते हैं, 0 डाउन पेमेंट मेडल लेके जा सकते हैं। फिर 3 साल का अंदर कभी भी आप पहुंच सकते हैं। इजी और नॉट? एनी डिफिकल्ट? आप कोशिश कर सकते हैं। फिर भी प्रभु जी मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत स्टूडेंट है इधर, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ, ऐसा बोलता है। फिर भी आप कोशिश कर सकते नहीं कर सकते? एनी डिफिकल्टी? ना। आज उन लोग का ये मेडल दे रहे हैं, ये ब्रॉन्ज मेडल है। अब देख लीजिए, इतना सुंदर से बनाया प्रभुपाद जी का मूर्ति भी है। आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव है, आज हम लोग कुछ करना चाहते हैं प्रभुपाद जी का।
ये ब्रॉन्ज मेडल 1.5 लाख का है, 1.5 लाख आप फ्लच करेंगे, 3 साल का अंदर कभी भी भर सकते हैं। आज आपका भगवान से चरण से आपका मेडल मिल जाएंगे, जीरो डाउन पेमेंट, आप कुछ भी नहीं करना, जस्ट यू हैव टू टेक संकल्प, दैट्स ऑल। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द डिवोटीज टू टेक सम संकल्प। कोई भी है इधर संकल्प लेने वाला, आप आगे आ जाए, मेडल ले लीजिए।